Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hamna Nasir, and I'm MPhil scholar, and I've submitted my thesis under the supervision of Dr. Yar Muhammad, and today is the defense of that thesis. The topic. So should I start it? Yes, please. Okay. So the topic of my thesis is critical thinking in the secondary school Pakistan studies textbooks, a qualitative content analysis. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी में इस तरह है कि सबसे पहले थोड़ा सा थीसिस में बताया गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके लिए क्या असल में उनका मेन मकसद क्या होता है कि क्या वो मेन सोर्स हैं टू डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आते हैं, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो करिकुलम के जरिए करिकुलम के जरिए वो लर्नर्स में उन्हें लॉजिकल और रैशनल इंडिविजुअल बनाने के लिए हम एजुकेशन का एक मेन पर्पस होता है ये, जिसके लिए हमारे पास टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ये चंद की टर्म्स की डेफिनेशंस हैं. वो ये है कि टेक्स्ट बुक्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज. मेंशनिंग द सब्जेक्ट कंटेंट टू बी टॉट इन स्कूल्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम. Therefore, students' critical thinking skills must be encouraged and enhanced through such content in textbooks that prompts one's critical thinking skills. Textbooks एक important source होते हैं. That's why जो है वो उनके अंदर जो curriculum का एक significant part होता है text book. इस तरह हमने देखना है कि why critical thinking skills. Critical thinking skills are considered as those specific skills जिससे एक individual जो है वो एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, रीजनिंग प्रोवाइड कर सकता है किसी भी फिनोमेना की. तो बेसिकली 21st सेंचुरी में ना सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बल्कि मल्टीपल डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या स्ट्रगलिंग कंट्रीज में तकरीबन 21st सेंचुरी में तमाम कंट्रीज में द इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन द करिकुलम एक एजुकेशनल गोल बन गया है, एक एजुकेशनल गोल है. इसी तरह पाकिस्तान का जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के एजुकेशन के, उसमें भी इनकलकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है स्टूडेंट्स में, दैट इज एन एजुकेशनल गोल. So thus teachers need to learn how to raise critical thinkers, and schools need to provide such a creative system, and textbooks shall reflect such content that enhances students' critical thinking skills. That was kind of the introduction of the study. Or a statement of the problem is that this study critically review specifically present Pakistan studies textbooks by analyzing the text-based questions so that the reflection of critical thinking skills could be evaluated in them. जो text-based questions हमारे दिए होते हैं at the end of the every chapter. Such studies in Pakistani context demand much attention to examine the existing content of the textbooks and explain whether content depicts enough or needs to be improved in the future regarding the development of critical thinking skills. इसी तरह as research indicates that in Pakistani context literature में हमें very few studies मिलती हैं regarding the development of critical thinking skills in students. The inclination दो जो मिलती भी हैं, it's the demand of the is demand of the hour. And the inclination of the research is mostly towards instructional practices, यानी कि critical thinking skills और instructional practices को देखा गया है. Teachers' effectiveness to incorporate critical thinking skills को देखा गया है. और जब जो टेक्स्ट बुक्स का एरिया जब टच किया गया है तो बेसिकली उसमें रिफ्लेक्शन देखी गई है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स जो हमारे स्कूल्स में बाकायदा पढ़ाई जाती हैं उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बहुत कम रिसर्चेस मिलती हैं. सो दैट वाज माय स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. So my purpose of the study was to determine the extent to which text-based questions and tasks incorporated in 9th and 10th grade textbooks of Pakistan studies are conducive to the development of students' critical thinking skills. दो बेसिस पे, एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल पे और दूसरा जो क्वेश्चन जो सोक्रेटिक टेक्सोनॉमी की क्वेश्चनिंग है हमें पॉल के उससे मिलती है, उनके मुताबिक उनको देखना है. 9th and 10th की जो उनके अंदर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं पाकिस्तान स्टडीज के. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वर, द पर्पस ऑफ द स्टडी वाज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स.
to examine critical thinking skills incorporated in text-based questions and tasks in 9th grade textbooks of Pakistan studies through Bloom's level and Socratic questioning, and to examine critical thinking skills incorporated in text-based questions and tasks in the 10th grade textbook of Pakistan studies through Bloom's levels and Socratic questioning. Or in the light of these research objectives, the research questions were developed at that we have to see to what extent are the text-based questions and tasks incorporated in 9th grade textbook of Pakistan studies are conducive to develop critical thinking skills in students on the basis of Bloom's level and Socratic questioning, and same with the 10th grade textbook of Pakistan studies. So जो रिसर्च गैप्स हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखे गए थे थ्रू लिटरेचर रिव्यू, उसमें हमें few studies have been conducted but followed analysis of textbooks mostly with respect to citizenship education. जब rationale of the study देखा गया था कि पाकिस्तान मेथोडोलॉजी पे आ जाए प्लीज आप जी, हम ना मेथोडोलॉजी पे आ जाए, मेथोडोलॉजी पे प्लीज, मेथोडोलॉजी पे आ जाओ, मेथोडोलॉजी पे आ जाए प्लीज। जी जी बिल्कुल। Okay. As aim of the study reveals that sample for this study are textbooks, so data was simply collected through the Punjab textbooks और कोई उसमें as such ethical consideration का नहीं था, क्योंकि they are available on net भी और वैसे भी, तो उनको देखा गया था। 9th and 10th की टेक्स्ट बुक्स यूज की गई थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, और उसमें हमने क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस जो है उसको मतलब वो हमारे एज अ मेथड रिसर्च मेथड यूज हुआ था। It's a process in which researcher tends to follow a systematic approach with guided techniques in order to analyze textual content and interpret meanings to make sense. Basically हमारा जो conceptual framework है वो हमारी इस पूरी study को as such guide करेगा। ये हमने डेवलप किया था रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और जो क्वेश्चंस ऑफ सोक्रेटिक टेक्सोनॉमी थे उनसे, जो कि ऑलरेडी एक हमने यूज किया हुआ है, इलियास फ्रेमवर्क ऑफ इलियास है उनका थीसिस, उन्होंने यूज किया हुआ है, जिसके जरिए उन्होंने 9 प्री डिटर्मिन्ड एनालिटिक कैटेगरीज जो है वो बनाई, मतलब गिवन थी। ये एज इट इज कॉपी किया गया था, और ये जो 6 लेवल्स ऑफ रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थे, इनका हमने जो गिवन एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके जरिए हमने सारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। सो जो 6 लेवल्स थे वो ऑब्वियसली ये हैं रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, और उसके जो एक्शन वर्ब्स, गिवन एक्शन वर्ब्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया था। नेक्स्ट हमने देखना था कि जब उनको एनालाइज करने के बाद ब्लूम्स के मुताबिक फिर देखना था कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इन 9 प्री डिटर्मिन्ड एनालिटिकल कैटेगरीज के अंडर फॉल होते हैं। क्वेश्चंस ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चंस दैट प्रॉब असम्पशंस, इनमें से इन सारी कैटेगरीज में किन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन फॉल होते हैं, आया फॉल होते भी हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो किस तरीके से। तो इस सारे को जो है जब हम एनालाइज किया गया तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स आई वो कुछ इस तरह थी कि रिसर्चर टुक 9th and 10th ग्रेड पाकिस्तान स्टडीज टेक्स्ट बुक ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि 2017 में पब्लिश हुई थी, एंड एनलिस्टेड चैप्टर्स ऑफ 9th ग्रेड एज चैप्टर 1 to 5, whereas chapters of 10th grade textbook were represented as chapter 6 to 10. Each chapter provided text related to topics falling under similar category, given specific students' learning outcomes before each chapter. At the end of the chapter, exercises were included which contained text-based questions divided into 4 types. Multiple choice questions थे, match the columns थे, fill in the blanks थे, short answer questions थे, और detail answer questions थे. Each type was analyzed under 6 levels of Bloom's taxonomy firstly, and then categorized using the framework of Ilyas 2015 to explore whether text-based questions were conducive to the development of critical thinking skills or not. So summary of findings for MCQs इस तरह से है। ये 1 to 5 चैप्टर जो है वो obviously 9th grade को डिपिक्ट करे and 6 to 10 10th grade को। So it's clear from the table कि हमारे जितने ज्यादातर like chapter 1 के 12 MCQs थे and totally were falling under the category of remembering level.
और चैप्टर 2 के 14 अंडर द कैटेगरी ऑफ रिमेम्बरिंग लेवल। इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो कुछ इनके जरिए से हमने उनको एनालाइज किया गया, लाइक कि कितने किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे थे। सो एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन की रेटिंग के अंदर कोई भी फॉल नहीं करता दिखाई दिया। फिर जो समरी ऑफ फाइंडिंग्स फॉर मैच द कॉलम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी कुछ इस तरह से थे कि टोटली देवर अंडर द कैटेगरी ऑफ रिमेम्बरिंग लेवल, जो कि हम एनालाइज कर रहे थे एक्शन वर्ब्स के को अप्लाई करते हुए। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन देखी गई। वो ये था कि रिमेम्बरिंग लेवल में आउट ऑफ 60 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 45 questions focused the memorization and recalling of the content, whereas understanding level में other जो 60 short answers के 45 उसके अंदर remembering level में fall कर रहे थे, and the other 15 questions fell under this understanding domain, that is could not be answered without an understanding of the phenomena. इसी तरह जब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के 9th ग्रेड की ये देखने के बाद जब उन्हें एनालिटिक कैटेगरीज में देखा गया तो उनमें भी तकरीबन सेम ही बात नजर आई कि ओनली जो 15 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंडर फॉल कर रहे थे, द सेम वर फॉलिंग अंडर द क्वेश्चंस ऑफ क्लैरिफिकेशन, जिसमें हमने देखा गया कि जो पॉल ने हमें चंद क्वेश्चंस के सैंपल दिए हुए थे दिए हुए हैं, उसके मुताबिक हमने देखा कि उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्या पाए जा रहे हैं, उस तरीके से हमने इनको क्वेश्चंस ऑफ क्लैरिफिकेशन के अंडर रखा। ये हमारे पास समरी ऑफ फाइंडिंग्स फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 10th ग्रेड, इसमें भी हमारे पास रिमेम्बरिंग लेवल में आउट ऑफ 41 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 34 क्वेश्चंस वो थे जो दैट फोकस द मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग ऑफ द कंटेंट, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में द अदर 7 क्वेश्चंस फेल अंडर द अंडरस्टैंडिंग डोमेन। फिर इसमें हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा मिला था, वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसा था जब हमने एनालिटिकल कैटेगरीज को देखा कि उसके अंडर कोई फॉल कर रहा है, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में थे वो तो एज इट इज फॉल कर रहे थे क्वेश्चन ऑफ क्लैरिफिकेशन में, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो that question probe implication, consequences and alternatives. One short answer question fell under this category, जिसमें solution और explanation की बात की गई। उसके बाद हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में भी हमारे पास जो चैप्टर ये थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल्स के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग लेवल के आगे कोई भी नहीं देखा गया, लेकिन जो कैटेगरीज थी 9th ग्रेड में जो कैटेगरीज थी उसमें हमारा क्वेश्चंस अबाउट व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव में 1 क्वेश्चन देखा गया और रीजंस एंड एविडेंस में 1 क्वेश्चन देखा गया, जबकि यहाँ पे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन में वो आंसर क्वेश्चंस जो कि फॉल कर भी रहे थे ब्लूम टेक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, वो क्लैरिफिकेशन के लेवल पर नहीं फॉल कर रहे थे इन दिस डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में। ये चीज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से थोड़ी मुख्तलिफ नजर आई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है समरी ऑफ फाइंडिंग्स फॉर डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस 10th ग्रेड। उसमें ये है कि सेम फॉर द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की कैटेगरी, लेकिन जो द फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट दो क्वेश्चंस डिमांडेड नरेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ऑफ एनी टॉपिक मेंशन्ड इन चैप्टर्स, text neither dealt with the assumption, conclusion, questions, predictions, pros and cons, except for one question, focusing understanding and clarification of the topic to be answered, that is why is Urdu, ये एक क्वेश्चन था, why is Urdu called the national language of communication in Pakistan। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वैसे तो ये फॉल कर रहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चनिंग प्रोवाइडेड बाय सोक्रेटिक टेक्सोनॉमी, और उस क्वेश्चन ऑफ क्लैरिफिकेशन के अंदर फॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे द रिसर्चर फाउंड 2 क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस in which students were required to analyze relation of Pakistan with India and Afghanistan. If the question is ये प्रॉब्लम है कि क्या क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। If the question is interpreted as the real phenomena of analysis, it could fall under the category of questions demanding reasons भी हो सकते हैं, perspective उस कैटेगरी में भी फॉल किया जा सकता है। जैसे कि एनालिसिस जो है that is not just jotting down different aspects of any phenomena, rather it deals with the problem identification, diagnosis of issues, presenting solutions and recommendation। ये ऑक्स के मुताबिक ये अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो they also fall under the category of reasons और perspective वाली कैटेगरी में भी फॉल किया जा सकता है
एनालाइज। तो लिखा वैसे मेंशन किया गया है कि ये इसके अंदर फाइंडिंग में मेंशन किया गया है कि ये फॉल कर रहे हैं एनालिसिस वाले उसमें, ये आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में देख सकते हैं कि एनालिसिस के पार्ट में फॉल कर रहे हैं 2 क्वेश्चन। So the conclusion was this: the analysis of the finding revealed that text-based exercise questions of the selected textbooks were not conducive to develop critical thinking skills. In conclusion, the results of this qualitative content analysis for selected textbooks revealed that the text-based questions being introduced in 9th and 10th grade failed to meet the criteria and definition of critical thinking or higher order thinking skills mentioned in literature. It might be because of the types of questions, as most questions comprised of multiple choice questions, fill in the blanks and match the columns, which confine the thinking process, according to Ventrog, leading towards rote memorization of the content. So, recommendation for policy and practice. If the inclusion of greater percent of questions that challenge critical thinking skills in textbooks is not possible, at least a homogeneous distribution of questions should be taken into account while developing exercise questions. ये बहुत देखा गया था कि 9th में और 10th grade में दोनों में ये था कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस ज्यादा थे, MCQs, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें ज्यादा थी, जबकि डिटेल आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी. An addition of critical and creative questions or activities in the textbooks of any subject would motivate students to think out of the box and observe the topics from different perspectives. So it's a recommendation. Textbook recommended by the government for education institutes of Pakistan need to be aligned with the Pakistan Studies curriculum policy. Textbooks need to be revised according to the national educational policy and national curriculum in order to update the topics to make it conducive to developing 21st century skills, values or other desired characteristics. Basically, हमारे national education goal में और national curriculum में बहुत वाज़े तौर पे है कि critical thinking skills जो है वो incorporate करनी है students में. तो टेक्स्ट बुक्स भी उस क्राइटेरिया के मुताबिक इवैल्यूएट होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए उनको ताकि ये इनकलकेट भी हो सके, क्योंकि वही तो कंटेंट है जो पढ़ाया जाता है. और अगर वो अलाइंड होंगी विद असेसमेंट क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वो फिर ही तो इनकलकेशन नजर भी आएगी सामने. सो दीज वर सम ऑफ द रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस. और सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च कुछ इस तरह से हैं कि more research is needed using different subject textbooks, whether the humanities subject or the science, to get an appropriate and complete insight of reflection of critical thinking skills in textbooks. Comparison of teachers' perceptions and textbook content regarding the development of critical thinking skills would be interesting, as it would reveal how teachers perceive the content of textbooks and text-based questions in relation to critical thinking skills. अगर टीचर्स की परसेप्शन को उनके साथ जो है वो किया जाए, देखा जाए रिलेट करके, तो ऑब्वियसली वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देगा और क्या कंटेंट पढ़ाना चाहिए ये भी हमारे सामने आएगा. Textbooks need to be evaluated following different theories or taxonomies explaining higher order thinking skill processes, or else in order to maintain the strengths of textbooks and removal of weaknesses or flaws within them. The work on critical thinking skills in the context of Pakistan is much confined, which need to be expanded in order to understand the definition of critical thinking skills from different perspectives, which would then broaden the area of critical thinking skills for further studies to be conducted in Pakistani context. So, ये कुछ suggestions थी future research के लिए जो मेरी study के जरिए मतलब आगे स्टडी के जरिए निकली थी कि ये सजेशंस हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए. सो दिस वाज माय रिसर्च. थैंक यू. सो इफ जो भी क्वेश्चंस हैं या इस तरह है तो थैंक यू सो मच. There are only 2 or 3 questions that I would like to ask. पहली तो बात मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो अगर आप क्लैरिफाई कर दें. आपने जब MCQs की बात की थी, you were showing a lot of chapters over there. लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस में आप सिर्फ 4 चैप्टर्स दिखा रही हैं. उन चैप्टर्स में 4 के अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस थे ही नहीं, या आपने उसका एनालाइज नहीं किया?
सर मुझे जो समझ आई है वो आपने ये कहा है कि चैप्टर्स में वो शॉर्ट आंसर्स थे नहीं। मेरी बात सुनिए, जी इज माय वॉइस क्लियर टू यू? सर वो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एमसीक्यू वाला पेज खोलें, जरा एमसीक्यू वाली स्लाइड खोलें प्लीज, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट दिखाती हूँ। जी सर। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पे आपने 10 चैप्टर लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही है तो आप उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, उसकी वजह क्या है? बाकी 6 चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन थे ही नहीं, या व्हाट वाज द रीजन एक्चुअली? सर आई एम गोइंग टू टेल यू, बेसिकली ये फाइंडिंग, ये जो एमसीक्यूज की है, ये 10 चैप्टर्स 9th और 10th की इकट्ठी फाइंडिंग एक ही स्लाइड में बना दी है मैंने। और ये जो है ये है कि 5th जो हमारे पास चैप्टर था 9th ग्रेड का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे, एंड 5th चैप्टर जो हमारे पास 9th ग्रेड का था उसमें भी मैच द कॉलम्स नहीं थे। सेम इज हियर कि इसमें मैंने 4 दिए हैं, ये 9th ग्रेड के सिर्फ 9th ग्रेड के हैं। उसमें जो 5th क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर है ना, उसमें भी जितना मैंने एंड में बताया ना कि होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नजर आ रही, उसमें डिटेल आंसर्स नहीं है। चैप्टर 5 जो हमारे पास मौजूद है ना 9th ग्रेड का, सेम इज द केस विद 10th ग्रेड। तो किसी में उन्होंने शॉर्ट आंसर्स मिस कर दिए हैं, किसी में उन्होंने जो है वो मैच द कॉलम मिस कर दिए हैं चैप्टर में। वैसे बेसिकली सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 5 एंड वाला जो चैप्टर है मे बी, और वो होता भी बहुत छोटा है। दूसरी बात, मुझे बात तो बताएं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे इतना ज्यादा काम हो चुका है, आपका वर्क जो प्रीवियस वर्क हुआ है उससे डिफरेंट कैसे है? व्हाट न्यू हैव यू डन इन दिस स्टडी? क्योंकि मैं आपका कब तकरीबन 10 से 12 थीसिस कम से कम मेरे ध्यान में आ रही हैं, जहाँ पे लोगों ने कंटेंट एनालिसिस किए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सामने रखते हुए वगैरह वगैरह। So what is new in this one? What is your selling point? जी सर, बेसिकली मुझे जो मैंने जब स्टडीज जितने लिटरेचर में थोड़ी बहुत जितनी पढ़ी और जितनी मुझे समझ लगी, जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के ये जो एक्शन वर्ब्स है ना, ये बहुत क्लियरली हमें सारा कुछ समझा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इनको सामने रख के ऐसा नहीं, मुझे नजर नहीं आया कि इस तरह से ये स्टडीज हो सकता हो। लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स या इस तरह के जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनकी किताबों को इनकी स्पेसिफिकली इस रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो एक्शन वर्ब्स है ना, इनके मुताबिक, क्योंकि इनके मुताबिक इंटरप्रेट करना इज वेरी इजी और बहुत ज्यादा क्लैरिफाई होकर सामने आ जाता है कि ये चीज है। और जैसे रिकॉलिंग है, रिकॉग्नाइजिंग है, अच्छा एक्सप्लेनिंग है, एग्जाम्पलिंग है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग नहीं है, जनरेटिंग नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो ये इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा, और फिर उसको रिलेट करना ये सोक्रेटिक टैक्सोनॉमी के साथ ये सारी कैटेगरीज के मुताबिक, तो ये एक मुझे लगा कि एक न्यू चीज होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन, द लास्ट वन, जस्ट फॉर आउट ऑफ माय ओन क्यूरियोसिटी एक्चुअली, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और सोक्रेटिस जो आपके वो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको आपने लिंक किया है कि जो सोक्रेटिस वर्ड्स हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कहाँ पे फॉल करते हैं कहीं, या इन दोनों को आपने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखा है? सर वैसे तो इनको इंडिपेंडेंट ही रखा है, लेकिन इन दोनों को इंडिपेंडेंटली जब एनालाइज किया दोनों को, उनको उसको और उसको, लेकिन जब इसको डिस्कशन में लेके आए हैं तो फाइंडिंग्स को दोनों को रिलेट करके ये देखा है कि जब वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे फॉल कर रही थी तो सेम वो क्वेश्चंस ऑफ क्लैरिफिकेशन पे भी फॉल कर रही थी। तो उस अंदाज में किया है कि शायद अगर वो दूसरे लेवल पे भी फॉल कर रही होती, जैसे एनालिसिस और जो हमारे ब्लूम्स के और लेवल्स हैं, तो फिर हो सकता है वो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज, जो इसकी 9 कैटेगरीज हैं, उनमें फॉल करती, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं फॉल कर रही थी, हमारे पास फाइंडिंग्स में नहीं आया। तो अगर हम इसके मुताबिक एनालाइज करें दूसरे सब्जेक्ट्स में तो मे बी वो फॉल करें और रिलेट भी किया जा सके डिस्कशन में फिर ज्यादा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।